The name of the group is Inmo Indore Moms. It's basically Central India's largest every mommy community with over more than 46,000 mothers connected through a Facebook group. Really? Our tagline says एक break तो बनता है. You know, you can always take a break and always come back in your career, in your life. ट्रस्ट में एक बहुत ही रिनाउंड स्कूल थे, उनके यहाँ किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई और वो उन्होंने स्कूल के लिए वहां पर लिख दिया और स्कूल के प्रिंसिपल ओनर सबके मुझे कॉल आ रहे थे दैट कोमल यू शुड रिमूव दिस इमीडिएटली. सो आई सेड सर दैट वाज वो मदर ने अपने पर्सपेक्टिव से आपके स्कूल के लिए लिखा है, मैं रिमूव नहीं कर सकती. Yeah, that's a freedom of speech. So I have recently come up with Her Circle Club, which is basically for all females, whether it's like startup, a young girl who wants to do something, for all the daughters, everybody, like there's no age bar for that. And we have come up with this club whereas we'll be helping every person to grow. But what about males? What about males? Males की बात क्यों नहीं हो रही है? हाँ, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. But आप नेक्स्ट ईयर प्लान करो, क्यों नहीं? हाँ. मैं किसी से मिलती हूँ, हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी को, तो बोलती है आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ. आई ऑलवेज से बीइंग अ होम मेकर इज बिगेस्ट जॉब व्हिच यू आर डूइंग. यू आर गिविंग योर 100% टू योर होम, टू योर फैमिली, टू योर किड्स. और इसके लिए एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी के साथ है, यू डोंट गेट रिगार्ड्स टू दिस वर्क. Hello, and welcome back to the Everything You Should Know podcast. And we're back with Mrs. Komal, who's the founder of Central India's largest mother self-help group on Facebook. And we're so proud that you're here. Yeah. And, Thank you so much. we have a lot of questions for you. Thank you. So कोमल जी कैसा चल रहा है? All well, you tell me. All good with us as well. So basically, tell us about this page you have. ये community के बारे में हमें थोड़ा सा describe कीजिए. क्या है ये community? कैसे है ये community? इसका purpose क्या है? Basically, its name is Inmo Indore Moms. It's acronym of Inmo is Indore, IN is for Indore, and MO is for mom. So it's Inmo. Okay. Inmo Indore Moms. Yeah. It's basically Central India's largest every mother's community. So कोमल जी, tell us about this community. Tell us कि Inmo कैसे बना, मतलब क्या है इसका reason? Why do we need to know about this? And what are you doing with this community? See, basically Inmo is Inmo Indore Moms. The name of the group is Inmo Indore Moms. It's acronym of Indore and Moms. IN is for Indore and MO is for Moms. So it's basically Central India's largest every mommy community with over more than 46,000 mothers connected through a Facebook group. Really? Yes. Okay. और ये सारी mothers इंदौर शहर से हैं. तो motive and purpose, like being a mother myself, I started this community because मुझे लगा कि सोसाइटी को mothers, when we become mothers, we need that break. हम कई बार ना बहुत पीछे छूट जाते हैं. Our tagline says एक break तो बनता है. Inmo Indore Moms का जो tagline है, that is एक break तो बनता है. So I always say my mothers that you can always take a break and always come back in your career, in your life. So होता है, I being a mother, I started this community because मुझे ये thought ये आया कि हम mothers when we get married, ऐसा होता है कई बार हम लोग एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफर हो जाते हैं. समटाइम्स इट्स अनदर कंट्री. Yes. So you tend to leave your career, your family, everything, and then when you become mother, again it's a very beautiful feeling to to enjoy that, embrace that motherhood. But again you tend to sacrifice on your career. And मैंने देखा है बहुत सारी mothers उसके बाद कभी कम बैक नहीं कर पाती. तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ हमने ये कम्युनिटी स्टार्ट की थी कि एक ब्रेक लेके आप हमेशा कम बैक कर सकते हो और वाइल बीइंग अ मदर यू कैन एंजॉय दिस मदरहुड जर्नी विद अस. बिकॉज इवन मैं व्हेन आई बिकेम मदर, मैं ढूंढ रही थी ऐसे फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड मदर्स जिनके साथ मैं बैठ सकूं, बात कर सकूं, अपने इनसाइट्स, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं. एंड दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट, एंड दिस इज हाउ वी हैव कम अप विद दिस Inmo Indore Moms. एंड ट्रस्ट मी, ये कम्युनिटी मैंने लखनऊ में स्टार्ट की थी. अच्छा. In which year? It's like when my son was 3, we got transferred to Lucknow. Okay. By profession, I'm travel agent. So again, as I said, I was working with very good MNCs initially. And बेटे के बाद मैंने अपना career से break लिया था. I just took a switch. मैंने कहा बाद में कुछ करेंगे, start करेंगे. So I took that break. And that time I just thought of that, let's start my own travel company. तो मैं घर से बैठ के थोड़ा घर पे ही बैठ के मेरे जितने क्लाइंट्स थे उनके लिए एज अ फ्रीलांसर काम करती थी. एंड दिस इज हाउ आई वाज वर्किंग. व्हेन माय हस्बैंड रियलाइज्ड कि यार ये करना चाह रही है कुछ, तो ही सेड लेट्स स्टार्ट अ ट्रैवल एजेंसी हियर इन इंदौर. दिस वाज द थॉट.
travel agency start करते करते while you know when we were thinking about it he got transferred to Lucknow. He's an अरे। engineer. So again एक और break लगा और then जो agency खुलनी थी वो नहीं खुली and we got transferred to Lucknow. हम वहाँ shift कर गए. अब you know if you see इंदौर शहर MP and UP कल्चर डिफरेंस बहुत बड़ा है. बहुत ज्यादा बहुत बड़ा. इंडिया में इनफैक्ट हर 250 किलोमीटर्स पे कल्चरल डिफरेंस बहुत Yes, ज्यादा है. yes. तो इंदौर और लखनऊ में तो Yeah. क्रेजी. Yes, in MP ने पूरा 360 degree difference. I am telling you because when I went there, I am a very social, you know, social person. So neighbors भी बात नहीं करते थे. Literally, I am telling you. लखनऊ में. And क्योंकि यूपी में थोड़ा सा crime rate भी ज्यादा है, तो वहाँ पे ना थोड़ा बच्चों को भी हाँ थोड़ा सा थोड़े से थोड़ा तो हम लोग ना मुझे आज भी याद है when I used to call my neighbors kids कि आप घर आ जाओ. मेरा बेटा बहुत छोटा था. मैंने कहा आ जाओ यहाँ पर खेलो हमारे साथ. तो यूज्ड टू आप बच्चे को ना कॉरिडोर में भेज दीजिए. मतलब अपने डॉटर्स को दूसरों के घर भी नहीं भेजते थे. दैट वाज द कल्चर. तो मैं तो बिल्कुल ऐसी हो गई थी वहाँ पे 1 साल में. मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकती. या तो यहाँ से चलो या लेट्स डू समथिंग. दिस इज हाउ I thought there will be so many females who must be going through this. कि you know, as I said कि career break, उसके बाद मम्मा बनने के बाद एक break, उसके बाद सारे friends relatives छूट जाते हैं आपके. तो how do they feel? कोई है नहीं आसपास सपोर्ट के लिए. दिस इज हाउ आई थॉट. एंड 8th March which is International Women's Day, मैंने वहां पर बैठ के फेसबुक पे कम्युनिटी बनाई. सो आई जस्ट कॉल्ड अप फॉर अ कॉफी मीट एंड दिस इज हाउ वी स्टार्टेड दिस कम्युनिटी. ओके, सो इनिशियली जब आप वहां पे थे, मतलब मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं है कि एक बिजनेस फर्स्ट डे बिजनेस प्लान के बजाय एक था कि आप मिलते हैं लोगों से, राइट? डू यू हैड एनी आइडिया कि यार ये इतनी बड़ी चीज हो जाएगी? नाउ आई थिंक यू हैव क्रॉस्ड 46K फॉलोअर्स. आपकी कम्युनिटी में 46,000 लोग हैं और आई थिंक nearing 47. Yes, and it's increasing day by day while we are sitting here and talking. My mom just enrolled. So apart from this, इसमें तो काफी challenges भी होंगे, right? Initially. See, when we started this community, I never thought something like this कि इसको हम monetize कर सकते हैं या इससे इतना लोगों को help मिलेगा या हमको भी help मिलेगा in a way. When I started, this was only thought behind it कि हम लोग मदर्स के लिए कोई एक ऐसा फोरम बनाए जहाँ पर वो सेफ फील कर सके. एंड इट्स अ क्लोज ग्रुप. लेट मी टेल यू, इट्स अ क्लोज ग्रुप. यू कांट इवन चेक दैट ग्रुप बिकॉज हम लोगों ने उसमें सेटिंग्स ऐसी कर रखी है ओनली मदर कैन बी अ पार्ट. एंड इट्स जस्ट लाइक इफ यू बिलोंग्स टू दिस सिटी, इंदौर सिटी, you can be a part. There is no fee or anything. Only you have to be a mother and to belongs to this city and you can be a member. So this is how we have come up with this. So I never thought कि इससे हम आगे जाके कुछ कर सकते हैं. When we started, we just thought कि मिलेंगे, ऑफलाइन मीटअप्स करेंगे, कॉफी पे मिलेंगे, कभी किसी सोशल ड्राइव के थ्रू मिल लेते थे, कभी कोई पार्टी कर लेते थे. तो इट वाज लाइक दैट. इनिशियली वी वर डूइंग दिस ओनली. इवन आई विल टेल यू, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा मेरे ही फ्रेंड्स से. बट अब बोलते यार अब समझ में आया तो क्या कर रही थी. बट वो एक लर्निंग कर्व भी है ना, बिकॉज़ आई डोंट थिंक मैंने ऐसी कोई भी कम्युनिटी और उसके बारे में सुना है ऐसा. Yeah, exactly. Like this is the first we Yeah. heard. Yeah. But like this is my question, like because बहुत लोगों को ये doubt होगा. But like what do you exactly do in the group? Yeah. क्या होता है, क्या like what is the process? What Yeah. does a person do? What Yeah. can they get help with? And like offensive side में how similar is it to a kitty party? Like, ऐसे. Correct. So when we this basically the motive is, as I told you, first thing is we are empowering mothers here in this platform. This is basically a encyclopedia for all the mothers. Because if I talk about INMO, why people come and join it and they never leave it, because they are getting big help through this community. Like if I talk about if you need any needle or if you need any school or if you need any doctor, be it anything, you just put it on INMO and you will see there will be like n number of comments, like more than 100-200 comments replying to those queries. So mothers are helping mothers in every way. Like literally किसी को गाय का दूध भी चाहिए होता है ना, तो भी वो वहाँ पे डालता है. किसी को अपने वेडिंग का ट्रूजो बेचना है, they'll put up. Even they are looking out for any school कि people who have got transferred here, सबसे पहले वो आके INMO ही ज्वाइन करते हैं. Because they get to know through neighbors कि INMO community है where you get help. And not only INMO FB group, we have even come up with a WhatsApp groups. So now we have 16 WhatsApp groups, again Indore city based. And we have a rule that every WhatsApp group should have a different mother. And कई मदर्स ऐसी होती है जो फेसबुक पे उतना ज्यादा एक्सेस नहीं करती, वो व्हाट्सएप के थ्रू भी हेल्प लेती हैं.
और वहाँ पर आपको आप कम्युनिकेट कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, इट्स लाइक फ्री फॉर एवरीवन. सो वहाँ पर आपको एक सबसे बड़ा आपको एक प्लेटफॉर्म पे हेल्प मिल जाता है. तो आपको कुछ भी चाहिए, यू कैन गेट इट देयर. सेकेंडली, इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर द मदर्स एंड फॉर द स्टार्टअप्स हु वांट्स टू डू समथिंग or who are already having their own established business with them. So can you tell us about some of the startups जो कि इस ग्रुप पे चालू हुए हो, जो कि मतलब some change, मतलब किसी को इस community के थ्रू ना, आप जैसे बता रहे सपोर्ट हुआ, हेल्प हुआ, so कि like do we have any examples? See, there's so many though, but let me tell you, हम लोग की जब event start किए थे हम लोगों ने offline events, तो my only motive to empower females, especially mothers. सो मैं क्या करती थी, जब भी मैं कोई इवेंट करती थी, आई यूज टू इंश्योर कि यहाँ पर हमारे इवेंट का डेकोर, हमारे इवेंट की फोटोग्राफी, हमारे इवेंट का एंकरिंग, हमारे इवेंट का कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग मदर ही करे. हाँ, मतलब उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं सब एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वही करे. इसमें क्या इन हाउस एवरीथिंग इन हाउस. इवन कोई मतलब छोटी से छोटी चीज, कई लोगों ने इसके लिए कोर्सेज भी किए. मतलब मैंने एक बार एक छोटा सा इवेंट किया था, उसमें मुझे ये आपके किटी के टिकट्स की जरूरत थी. किटी में नॉर्मली ये आप ये करते हैं ना, तंबोला टिकट, सॉरी. सो तंबोला के लिए टिकट्स चाहिए थे, तो somebody told me कि I can make customized तंबोला टिकट्स. तो you guys also do वैसा वाला 2 sexy legs 11 वैसा वाला सारे तंबोलास के कुछ स्पेशल होते हैं. That's a secret. Jokes apart, but yes, we curate parties whereas we do keep tambola. Like हम लोग एक करवा चौथ का इवेंट करते हैं, that's a pre करवा चौथ. Basically it's a करवा चौथ के एक दिन पहले आप आओ, बहुत डांस करो, बहुत जम के खाओ, मस्ती करो, एंड नेक्स्ट डे यू डू फास्टिंग पूरे फुल जोश के साथ. तो वहाँ पर भी टिकट्स रखते हैं, सब रखते हैं. तो दैट लेडी contacted me, she said I can make such tickets. I said okay, you do it. She started making tickets and उसको इतना उससे रिस्पॉन्स मिला थ्रू फर्स्ट थिंग, उसने अपना खुद का तंबोला टिकट्स का बिजनेस शुरू कर लिया. Really? या फॉर एवरी इवेंट शी डज तंबोला टिकट्स. आप बोलो कि इस तरह की पार्टी ये थीम है, शी विल मेक इट फॉर यू. That's really nice. या लेकिन बिजनेस भी है. हाँ, I don't know, it's a very big business. क्योंकि चीज कहाँ नहीं हो रही है. हाँ, बट तंबोला टिकट क्रेजी यार. क्या सोचा होगा. But I'll tell you, photography हमारे यहाँ जो करती थी लेडी, she used to just tell me कि I'll do photography, you do promotions for me. I don't even pay me initial level पे. I started doing it, and after 1 or 2 events I started paying her also, and she started her own photography thing in Indore. She was based out of some other city. She started doing photography and she's one of the very good photographers in Indore nowadays. One of the very renowned photographers, and she started the career with Inmo. So there are so many examples. Trust me, कई बार आपके पास ना बहुत टैलेंट होता है, बट टैलेंट सिर्फ टैलेंट आज के टाइम में इट्स ऑफ नो यूज अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है. Definitely. Even if you are doing something very good, but आपके पास दिखाने के लिए लोग नहीं है, तो what will you do with that talent? Yeah, you were saying. So that platform will do. I have a question. So what? कभी भी ऐसे रिटेंशन को लेके इशू हुआ है कि like people are leaving or something, like कोई as anyone ever left like the group or something? See, it's like something I should say हर वक्त ही होता है. but like people come and go. How do you deal with the retention issue? See, because I'm feeling like if someone joins the group and then they ask for help, it's basically like a mom's ka Reddit. Yeah. So if you ask for help and then sometimes you see कि हाँ ये अच्छे एडवाइस नहीं आ रहे इस चीज पे, and then आपके दिमाग में ऐसा था कि यार छोड़ेगा कौन पूछेगा, and then you leave it, and then it like slowly disappears from your mind. तो like ऐसा कभी issues आपको आए, like how do you keep it interesting, कि like how do you keep it check कि like सही चीजें भी जा रही हैं पेज पे, कुछ गलत नहीं हो रहा है, कोई कुछ गलत बोल नहीं रहा है या कुछ. So basically, see what I'm getting from this question is कि more than 46,000 members posting every day, asking for help every day. How do you keep check कि यार जो मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरा एक बेसिक फील से मैंने स्टार्ट किया था कि हेल्प होनी चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए, वो अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? See, keeping हम लोग की अपनी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से एक चेक तो रहता है, बट एज यू मेंशन ये चीजें होती है ग्रुप में. समटाइम्स कोई कुछ डाल रहा है, किसी को किसी की चीज से प्रॉब्लम है. हमारे यहाँ ना फीडबैक्स भी अलाउड है. लाइक यू कैन पुट अप पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक. इफ आई डिडंट लाइक दिस प्रोडक्ट, यू कैन पुट अप अ नेगेटिव फीडबैक. सो कई बार तो ऐसा होता है कि किसी ने किसी के लिए कुछ फीडबैक डाल दिया, एंड नाउ पीपल आर कॉलिंग मी अप दैट ये पेज से हटना चाहिए, एंड आई एम लाइक आई कैन नॉट हेल्प इट बिकॉज शी हैज पुट अप समथिंग फॉर यू, शी डिडंट लाइक इट. Possibly it's a genuine comment. I can
आई कैन नॉट डू एनीथिंग. हाँ. ट्रस्ट में एक बहुत ही रिनाउंड स्कूल थे, हम्म. उनके यहाँ किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई और वो उन्होंने स्कूल के लिए वहां पर लिख दिया और स्कूल के प्रिंसिपल ओनर सबके मुझे कॉल आ रहे थे दैट कोमल यू शुड रिमूव दिस इमीडिएटली. Yeah. सो आई सेड सर दैट वाज, वो मदर ने अपने पर्सपेक्टिव से आपके स्कूल के लिए लिखा है, मैं रिमूव नहीं कर सकती. हाँ. Yeah, that's Freedom a of freedom of speech. speech. Yeah. So he said, कुछ तो करना पड़ेगा. Then you know when there were like more than 200 comments were there, people are saying Back and something. forth, back and forth. Yeah. So then I thought that you know कहीं ना कहीं एक balance out तो करना पड़ेगा. Hmm. So what I did, I turned off the comments. Okay. So this is how we help. We cannot delete that Hmm. feedback, but we can always turn off comments. बढ़ने से रोक सकते Yes, बढ़ने से रोक सकते हैं. और इन द सेम मैनर कई बार हमारे यहाँ कई ऐसी चीजें हैं, कंटेंट जो नहीं जाना चाहिए वो आ जाता है. जैसे कोविड में, इफ आई टॉक अबाउट कोविड के टाइम में, अगर कोई इंजेक्शन के बारे में भी पूछता था या कोविड से रिलेटेड, तो फेसबुक इतना स्ट्रिक्ट था Yeah. कि कई हमको वार्निंग्स आती थी फेसबुक हाँ. के ऊपर. तो उसके कारण कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे टीम में मेंबर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उन्होंने भी कई बार गलत पोस्ट अप्रूव कर दिए, बिकॉज हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक फिल्टर लगा हुआ है. यू कैन नॉट जस्ट पोस्ट इट, you cannot post it just like that. नाइस क्वेश्चन. लाइक कोमल जी, ये कैसे होता है? हु इज वेरीफाइंग कि ये सच है झूठ है क्या है? See, basically, I have a team. We Okay. have moderators team. Hmm. Even if you send a request to us Hmm. to get join, suppose आपने तो भेज दी कि चलो ठीक है मैं डाल देता हूँ, देख लेता हूँ, अप्रूव हो जाएगी तो हाँ. कर लेंगे. Hmm. तो we have like 15 moderators in our group. They go and they check your profile. Hmm. We have filters. You just can't get added in the group directly. Hmm. There's a filter which says कि आपने Facebook group कब ज्वाइन किया था, Hmm. फेसबुक कब ज्वाइन किया है, आप मेल हो फीमेल हो, ये पेज है या एक प्रोफाइल है. उसमें लिखा होता है आप मदर है, एक छोटा सा फॉर्म आता है, आप मदर हो नहीं हो, आपको फिल अप करना पड़ेगा. वंस यू विल फिल इट अप देन वी विल ऐड यू. Hmm. टिल देन यू आर नॉट मेंबर. इन द सेम मैनर यू कैन नॉट पुट अप एनीथिंग, कुछ भी रैंडम आप उठा के नहीं डाल सकते हो. वी हैव रूल्स. लाइक हमने मदर्स के लिए एक हेल्प किया हुआ है कि फर्स्ट वेडनेसडे इज for free promotion day. It's a business promotion day. So first Wednesday you can put up any advertisement about your business, but not every day. Hmm. Because then it will be like buying and selling group. हाँ. And ये बीच में कई बार ऐसा होने लगता है, फिर हमको as you said Control ना करना कि पड़ता है. कंट्रोल करना पड़ता है कि हाँ. चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, फिर वो बोलते हैं अरे हमने इसके लिए नहीं ज्वाइन किया है. हाँ. फिर वो चीजें वहाँ पे कंट्रोल की जाती है. समटाइम्स कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से चीज़ें कुछ नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज हमको भी काफ़ी इंटरैक्टिव कंटेंट डालना पड़ता है. समटाइम्स आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट टू. तो येस, वो सैनिटी रखनी पड़ती है ग्रुप की. एंड इट्स वेरी टफ, ट्रस्ट मी, बिकॉज एवरी डे देयर लाइक मोर देन 200-300 पोस्ट एवरी डे ऑन माई ग्रुप. एंड एवरी वन इज आस्किंग फॉर हेल्प. समटाइम्स एनोनिमस आजकल मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं, हाँ. बिकॉज जैसे किसी को घर में प्रॉब्लम हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है कोई, इस तरह की हेल्प भी हमारे ग्रुप में मिलती है. एंड पीपल पुट अप, किसी को किसी के इन-लॉज से प्रॉब्लम है, किसी इन-लॉज को अपने घर में प्रॉब्लम है, वो भी हाँ. पुट करते हैं एनोनिमस. तो इस तरह की चीज़ें भी ग्रुप में आती है. तो इट्स लाइक हमको कई बार बहुत चीज़ें डिलीट भी करनी पड़ती है और कई चीज़ों को वी ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. दिस इज हाउ वी वर्क. So what is next for this community now? It's like you're targeting how many like members in the coming year? सी आई एम प्लानिंग, सी ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, कहते हैं ना बोलने से नजर लग जाती है, हाँ. बट या आई एम थिंकिंग कि दैट नॉट इन नंबर्स, या ऑफ कोर्स नंबर्स में हम ग्रो करें, बट मुझे लगता है हम जितनी मदर्स हैं उनके साथ और अच्छा अपना कनेक्शन बढ़ा सकें. they feel more secure, they feel more connected, and they feel more वो एक अपनेपन वाली फीलिंग और ला सके. They don't feel alone. मतलब एक रहता है कि अब मेरे साथ और 40-50 हजार लोग खड़े रहे हैं. community. हाँ, exactly. So we just feel कि they should not feel left out. उसके लिए हम थोड़ा ज्यादा काम करें, इसलिए हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन इवेंट्स भी करने की, जिनके थ्रू हमने अभी हम काफ़ी सारी CSR एक्टिविटीज़ भी करते हैं. अभी हमने साइबर क्राइम को जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पे भी इवेंट्स किए थे. एक साइबर क्राइम पे इवेंट किया था, उससे हमको पता चलता है कहीं ऐसी मदर्स है, बिकॉज सिंस इट्स नॉट अ क्लब वेयर इज एज यू आर डिस्कसिंग दैट किटी थिंग. आई एम लेट मी टेल यू, when I started this na initial 1 year I was doing so many events, so many parties also, events also. So some of my friends called me up, my friends were like, तूने इतना बड़ा ग्रुप क्यों बनाया है, एक किटी का बना लेना, देखो टेंशन भी कम रहेगा, किटी ग्रुप खोल ले, यू आर डूइंग द सेम थिंग. सो आई सेड ओके, यू सी and I was really very happy that friend called me up 2 years back and to congratulate me that I didn't know what was your vision. Yeah. This is what you were trying to do with this group, because I can proudly say now these 46,000 mother are actually getting help through Indore Moms. Even if they wish to start their business, they have help. That I am there, my community is there to help you out in every way possible. We are also coming up with some more groups, like especially बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी जो अनमैरिड हैं, वो हमारे पास आती है, हमने क्या किया है, हमें क्यों नहीं लिया हुआ है ग्रुप में. सो आई हैव रिसेंटली कम अप विथ हर सर्कल क्लब, which is basically for all females, whether it's like startup, a young girl who wants to do something,
for all the daughters, everybody, like there is no age bar for that. And we have come up with this club whereas we'll be helping every person to grow. Because ultimately I see if you are talented and if you have a platform you can do wonders. But what about males, Komal ji? What about males? Males की बात क्यों नहीं हो रही? थोड़ा सा discrimination हाँ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. But आप नेक्स्ट ईयर प्लान करो लाइक क्यों नहीं? Yeah. हाँ. What is the her wala group called? The Her second- Circle Club. Her Circle Club. Or it could be his circle club. Yeah. नहीं नहीं, बट Her Circle Club में हम अलाउ कर देंगे, आप लोग आ जाना किसी इवेंट्स में. Rishabh, like, start कर. It's on camera now. Yes. पर ऐसा कभी हुआ है कि कोई मेल मेंबर आ गया हो गलती से? नहीं सी हम लोग ना कुछ इवेंट्स करते हैं. बहुत funny हुआ है. नहीं ग्रुप में रिक्वेस्ट आती है एवरीडे. दे लाइक मोर देन 550 नहीं बट रिक्वेस्ट. ऐसा है क्या कि आपको पता चले कि यार ये फीमेल की प्रोफाइल थी पर ये है कब से मेल? Like, कभी कोई बहुत स्मार्टली ऐसे घुस हाँ. गया हो, ऐसे बहुत Black सारा sheep, वो black sheep. exactly. ये होता है you know, एक दो बार ऐसे हुआ, किसी ने मुझे रिपोर्ट किया कुछ वो चला था, एक ऐड किसी ने डाला हो तो उसके कमेंट्स में नीचे एक मेल लिख रहा है मुझे भी ये चाहिए. तो 4 फीमेल से मतलब फ्रेंड्स के मेरे मैसेज आए, स्क्रीनशॉट देके बोले ये मेल क्या कर रहा है इस ग्रुप में. मैंने कहा यार आई डोंट नो हाउ कम, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. मैंने कहा ओके होगी मिस्टेक. और फिर मैंने उनको रिमूव किया. और ऐसे होता है. और हर दिन मैं बता रही हूँ 30 से 40 मेंबर मेल रिक्वेस्ट आती है. हाँ. कई बार हम मैं नींद में अगर किसी एक दो को अप्रूव कर दूं अगले मुझे मैसेज आ जाता है अरे यहाँ पे मेल्स भी अलाउड होने लगे, हमको बताइए. वो होता है ना कम्युनिटी में अच्छी चीजें. Apply करके देख ले कैमरा में ऐसी गलती से. Like when we have something to promote, then But definitely. I'm telling you, there are so We many have- male members who are doing business through Inmo, through their wives' account. Yeah. Yeah, but in a way ठीक it's a है. good thing. In a हाँ. way it's a good thing. Wives are supporting them. और मुझे लगता है मुझे आप किसी एक को सपोर्ट करते हो ना तो यूनिवर्स विल गिव यू 10 times of that. हाँ. If you're giving 1 rupee to someone, हाँ. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपको 100 rupees मिलेगा. हाँ बेसिकली मतलब universe से. इनडायरेक्टली जा तो उस फैमिली में रहा है, उस वाइफ की Yes. फैमिली में जा रहा है, फीस Yes. अर्निंग का. Yes. और ठीक है, if it's a good product, genuine है. हाँ तो अच्छी बस चीज़ है मम्मियों को ऐड करा लो. पे देता हूँ मैं. That's But it. I also want to ask you about the travel agency and everything. So how did that start? Like उसमें कैसे घुसे आप travel agency? See, I did my MBA in tourism management only. So I started my first company. I started doing tickets. तब उस टाइम में मुझे लगता है मैनुअल टिकट्स होते थे. हम ऐसे हाथ से लिखते थे, टिकट्स हाँ, बनाते थे. हाँ. मतलब और इनफैक्ट कई बार आप चाइल्ड फेयर या फेयर गलत कैलकुलेट भी हम ही करते थे टिकट का फेयर. अच्छा. आपने अगर गलत फेयर कैलकुलेट कर दिया तो टिकट वाइट हो जाता था. कई बार हमारी सैलरी से भी कटता था. आई डोंट नो वेदर यू नो फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स. दैट वाज द फर्स्ट ट्रैवल एजेंसी इंदौर की, वन ऑफ द वेरी गुड एजेंसी. बाद में सम द अदर रीजन वो एजेंसी बंद हो गई थी. Make my trip. So I started working from that company. I used to do tickets. Then I started learning package tours and all. So I worked for like 2-3 agencies in Indore. Then some good MNCs. I worked with SOTC, with Cox and Kings. When I got married, उसके बाद भी मैं काम कर रही थी because husband का जॉब भी इंदौर में था and he is being very supportive. हम साथ में ही काम कर रहे थे. और इसी कारण आई बिलीव मुझे लगता है कि यू वर आस्किंग मी ना इतना सब कुछ कैसे हैंडल करते हो. हाँ एक बीइंग इन अ ट्रैवल इंडस्ट्री ना आपको बहुत काम करना पड़ता है. हाँ. मतलब मेरा जाने का टाइम कभी फिक्स नहीं होता था. आई यूज Side की आदत हो जाती है. बस एक्चुअली. और वो हायरार्की फॉलो करने की भी आदत हो जाती है. बॉस की सुनने वाली, कस्टमर की ऐसे- कस्टमर की follow सुननी. यस वो चीज बहुत हेल्प की. मैं तो मतलब हमेशा मदर्स को बोलती हूँ कि इवन इट फॉर एन ईयर और सो हर किसी को एक बार जॉब जरूर करना चाहिए in a good company. You get to know so many things. You learn Yeah. a lot of things. And I used to get fame trips also. हम तो बहुत घूमे भी हैं through my company. But मैं जाती थी 9:30 बजे ऑफिस और मेरा टाइम आने का फिक्स नहीं होता था 8, 8:30. But being as a husband, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू ग्रो, टू इवॉल्व इन लाइफ. तो माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव. आई वॉज वर्किंग. मैं अपने 9th month तक मैंने काम किया है प्रेगनेंसी के. Oh, Yeah. really? So I was working and then even after that also I tried but somehow I couldn't. And मेरा हमेशा से ये था कि बच्चे को डे केयर तो नहीं भेजूंगी. I will be taking care of his like my child. And being in a nuclear family, घर में कोई और होता नहीं देखने के लिए. तो that time I took a break and then as I said मैं एज अ फ्रीलांसर काम करने लगी. Okay. जो मेरे क्लाइंट्स थे जो मुझे बहुत ट्रस्ट करते थे वो मुझे वैसे भी इंक्वायरीज भेजते थे. तो आई यूज्ड टू गिव इट टू दी कंपनीज एंड आई यूज्ड टू गेट कमीशन आउट ऑफ इट सिटिंग एट होम. Yeah. So this is how I was doing. And then when after certain time मुझे लगा after कि अब I should start my own travel agency. Then I started Go Luxurious and I started working as a full-time travel agent. Then again COVID happened. 2-2.5 साल तो ट्रैवल एजेंसी पूरी
पूरी वाट लगा दी पूरी फुल। कोविड के साथ साथ मेक माई ट्रिप है ना, इतने जितने नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहाँ पे पीपल लाइक कस्टमर्स कैन जस्ट गो डायरेक्टली, एयरबीएनबी है, तो वहाँ पे ये बिजनेस अभी कितना इम्पैक्ट हुआ है? This was my question. हाँ. Like, future में like, do you think there's a realistic future for travel agents now? Of course there is, Yeah, is it only for groups and events and all of that? no, it is because let me tell you, people are making money. People are making money, and where there is a money, you don't have time. Either you have time or you have money. Yeah. If you have money, you don't have time. So आज भी जो मेक माई ट्रिप या ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू जो लोग बुकिंग करते हैं ना, वो लोग हैं जो R&D करते हैं, एक मतलब यू नो 1000 रुपीज का भी हिसाब रख के बुकिंग करते हैं. यंगस्टर्स भी है, एंड द पीपल हु प्लान थिंग्स इन एडवांस, लाइक हु आर इनटू अ जॉब और समथिंग, और इवन दे आर डूइंग बिजनेस बट दे प्लान देयर हॉलीडे इन लाइक 6 months एडवांस में प्लान कर लिया, देन इट्स हेल्पफुल फॉर देम. बट द पीपल हु आर स्टिल देयर आर फैमिलीज जो आज भी ट्रैवल एजेंट पे रिलाई करती हैं, उनके थ्रू ही जाना पसंद करती हैं. उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना है कि यहाँ से वो अगर पहुंचे हैं एयरपोर्ट पे तो दे हैव उनको दे आर नॉट टैक्सी ढूंढ रहे हैं फैमिली के लिए. दे वांट एवरीथिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच. दे वांट ऑल द सर्विसेज एंड दैट टू यू नो they want us to do all R&D की Google review मैं चेक करूँ कौन सा होटल अच्छा है, कौन सा है out of 5 hotels, then हाँ I'll give them 3 options, out of 3 options they'll select pick one. तो आने वाला ट्रैवल इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है, because people, as I said, people are making money. So आने एक टाइम पे आने के बाद when you are making a lot of money, you will say why to spend that much of time, you know, making an itinerary for me and my wife. Let's call a travel agent and he'll do the needful or she'll do the needful. तो ट्रैवल का बिजनेस आगे जाके और इमर्ज होगा. बट यस कंपटीशन है, trust me, competition है, and that is the reason when I started my travel agency name was Go Travelicious. Then I changed it to Go Luxurious because मुझे ना वो क्लाइंट्स वाले भी आते हैं ना मेरे पास की थाईलैंड चाहिए मैडम, पैकेज ले लिया. फिर वो तो 1000 रुपए सस्ता दे रहा है. मैंने उससे पूछ लिया, वो लेके बैठा है पैकेज, उसने 10 और एजेंट्स को कॉल कर लिया और सबका कंपैरिजन बना के मुझे ये 1200 सस्ता है, ये 1300 सस्ता है, ये होटल अच्छा है. तो मैं बोलती हूँ सर एक काम कीजिए आप वहीं कर लीजिए. आप बचा लो, पैसे बचा लो थोड़े. एंड यस बहुत फ्री का ट्रैवल एजेंसी में बहुत फ्री की आइटनरीज बहुत बनती है. It's a lot of time consuming, but season wise अगर हम बात करें तो can you tell us one best destination for each season? मतलब winters में what place do you prefer? In India or international? Globally तो you have so many options. Yeah. In India. बाली जाने के लिए बेस्ट टाइम क्या है? अभी चले जाओ, it's a good time. बाली जाने के लिए People are हमेशा going. बेस्ट टाइम रहता How है. is September for Bali? September is good. Don't go in Yeah, I'll have to August, check. July, August. Post August you can travel. Bali is like something, you know, you will get everything. Bali is full of nature, full of adventure. You will get a lot of famous for plantation and all. तो बाली में आपको famous for clubs, night clubs. Yeah. तो जिसको सारा कुछ देखना है, एक्सप्लोर करना है, बाली is the perfect destination. Only thing is एक जो अपने यहाँ से हैसल होता है कि फ्लाइट्स बहुत लंबे हैं. Yeah. मतलब इतने में आप यूरोपियन कंट्रीज चले जाते हो, उतना बाली वाया जाना पड़ता है. एंड फेयर इज टू बी हाई एज कम्पेयर टू अदर डेस्टिनेशंस. सो आई वुड से ठंड में अगर आप जाओगे तो राजस्थान से अच्छा कुछ नहीं होता. सैंड डून्स आप करो, मतलब राजस्थान में यू कैन गो टू उदयपुर, यू कैन एक्सप्लोर. सबसे बेस्ट जगह है राजस्थान. सेकेंड, इफ आई टॉक अबाउट इन इंडिया इन समर्स, इफ आई से यू कैन प्लान शिमला मनाली तो सभी लोग जाते हैं. आई वुड से समर्स में अगर जाना है तो यू शुड एक्सप्लोर समवेयर, या तो लद्दाख. Ladakh is beautiful. Amazing. Have you been to Ladakh? You? Yes, last year only. I took all my girls trip. Yeah, I do girls trip also. 40,000 people. Huh? 40,000 लद्दाख अभी इंदौरीज को इतनी परमिशन नहीं मिली है, नहीं तो मैं तो 40,000 को ले जाऊँ. Imagine bro, लद्दाख में जाएगा 46,000 लोगों की लाइन में. No, like so your girls are like your family members. No. Your friends. See, basically, in my travel company, I also have one section which is, I call it women special departures. Okay. Women only special departures. This is why I have started this, because I feel there's so many females who struggle when it comes to travel, because या तो उनके husband के पास time नहीं है. They are busy minting money. Or they are not into travel at all. They don't want to go. Or they don't want them to go alone or ऐसा कुछ. Yes. And third thing, कि उनको एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि आप अकेले नहीं जाओ. Exactly. तो इफ दे वांट टू एक्सप्लोर, वो कहाँ जाएं.
और बात ये होता है कि बीइंग अ कम्युनिटी लीडर, बीइंग अ फाउंडर ऑफ इनमो इंडोर मॉम्स, पीपल नो मी. इनमो एक तरह से देखा जाए हर घर में है, हस्बैंड्स भी जानते हैं इनमो को सम वे और द अदर. तो दैट वाज द थॉट कि मैं ऐसा कुछ ट्रैवल सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट करूं जिसमें लोग ट्रस्ट करके अपनी वाइफ्स को या अपने फ्रेंड्स को या जिसको भी भेजना है मेरे साथ भेजें. तो आई इंश्योर कि मोस्टली ट्रैवल में मैं उनके साथ जाती हूँ. सो इसमें हम लोग अभी लास्ट ईयर हम लोग लद्दाख लेके गए थे. तो द लेडीज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन जॉइन अस एंड दिस इज हाउ वी डू इट. लाइक मैंने आपको बताया था, अभी हम लास्ट डिस्कशन कर रहे थे 3 years बैक बिफोर कोविड, मैं उनको ग्रीस लेके गई थी. दे वांटेड टू गो टू यूरोप एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू ट्रैवल सोलो, whether it's female or male, when you travel solo you evolve in a big manner. I can't tell you. You change between stations. Yes. You change between So stations. he just had a solo. Yes. Yeah? Yes. Yes. So excited about So, it. wow. I feel like. Where? Bata, please. So I went to Who McLeod. did you meet? Oh, I went to What did you do? So I went to McLeod, yes, and it was amazing. Yeah. So like, it was my first solo trip, and मैंने चिराग को I think दिसंबर या जनवरी में बोला था कि यार चिराग दिस बर्थडे मेरा बकेट लिस्ट में बस ये कि यार मेरे को सोलो ट्रिप पे जाना है. Yeah. So कितने लोग गए थे ग्रीस साथ में? Greece we were like 16 people. और कितने लोग थे जो कि ग्रीस फर्स्ट टाइम जा रहे थे उन 16 people में? Everyone. 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 I think Greece And सब लोग जाते हैं ऐसे. Okay, fine, ठीक है. That First is not the first. एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको Yeah. एक यहाँ पर एक स्टोरी बताना चाहूंगी. व्हाई आई सेड दैट कि आप इवॉल्व होते हो, ये सब ना बुकिश चीज नहीं है, ये एक्चुअली Yeah. ट्रुथ है लाइफ का. देयर वाज अ लेडी हु इज लाइक प्रॉपर मारवाड़ी फैमिली की थी, मैं नाम नहीं लूंगी, बट शी वाज लाइक समबडी. उनकी फैमिली में थोड़ा सा हस्बैंड को लेके मतलब एक डोमेस्टिक वायलेंस वाला चीज था, वो एक था. नॉट इवन हर हस्बैंड बट उसकी डॉटर भी उसको रिस्पेक्ट नहीं करती थी. व्हाट शी टोल्ड मी, व्हाट शी कन्वेड इट टू मी, कोमल आई डोंट हैव अ रिस्पेक्ट एट होम एट ऑल. एंड बीइंग इन अ फैमिली, यू नो, जॉइंट फैमिली, कई फीमेल्स हैं जो इस तरह का स्ट्रगल करती है. दे डोंट कम आउट, दे डोंट इवन एक्सप्रेस इट. यू वोंट बी एबल टू नो कि अगर वो क्लब में खड़ी है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि घर में क्या फेस करके यहाँ पर आई हुई है. सो सच फीमेल्स. सो शी सेड आई वांट टू गो टू ग्रीस बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश and my passport is blank, can you help me out with this? I said okay, let's go. I have scheduled everything because you know when you European countries में आपका proper interview होता है या आपको biometrics के लिए जाना पड़ता है, दिल्ली मुंबई, मतलब खर्चा भी है. It's a long process. थोड़ा मालूम होना चाहिए. मालूम होना चाहिए. So everything got done. मैं उसको उसका पासपोर्ट आया, उसका वीजा लग के आया. She was so damn happy. Let me tell you, I can't tell you. वो फर्स्ट डे इतनी डरी हुई थी in my trip. On last day, she was talking to her husband on a call. And उसने उसके लिए कुछ लिए थे लिकर एंड ऑल गिफ्ट में. एंड उन दोनों की वहीं पे एयरपोर्ट पे फाइट हो गई कुछ. ये अच्छा है यार. This never changes. कोई भी इंडियन हो. खरीदता जरूर है. पिएगा नहीं बनेगा ना. मतलब कुछ भी सिचुएशन हो, बट दिस ड्यूटी फ्री है तो ये तो आना है ड्यूटी फ्री से. So they had a big fight and we didn't knew this. मतलब वो बात कर रही थी साइड में. उसके बाद वो आके फ्लाइट में बैठी, एकदम बड़ी फ्यूरियस सी थी. मैंने बोला क्या हुआ, हम लोग पूछे, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड आज में, और क्या हुआ? तो बोली कुछ नहीं, उसने ऐसे बोला ये बोला. तो बोली मैंने तो उसके लिए कुछ लिया था, मैं वहीं पे डस्टबिन में एयरपोर्ट पे फेंका. हम Why you have to do this? तो हमको दे देती. मतलब I'm just telling you that. हाँ, no, But the thing is that when she went there and when she returned home, she was a different person altogether. इसका ये मतलब नहीं कि मतलब उसने उसके बाद उसके बहुत सारे कुछ और इश्यूज घर में हुए, काफी सारी चीजें हुई, बट वो इस डिसीजन पे पहुंची कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है anymore. And now she's a very renowned jewelry designer. She just jewelry designing. She did a course. She went to Hyderabad. She did a course, and now she's doing extremely good in her career. Because उसको ये समझ में आया कि यार you know इस तरह की सिचुएशन में रहना हमेशा जरूरी नहीं है. आई नेवर सपोर्ट दिस थिंग कि आई ऑलवेज बिलीव कि जितना हो सकता है फैमिली सिस्टम को आपको जितना हो सकता है रिटेन करने की कोशिश करना चाहिए, बट जहां आपको लगता है यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वहां से आपको इमीडिएटली निकल जाना चाहिए. वेदर इट्स अ फ्रेंडशिप, वेदर इट्स अ फैमिली, वेदर इट्स एनीथिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट इज समथिंग वो आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए. बट ये होता है ना, आपको जैसा आपने बताया एक डार्क फेज में आप इतना रहते हो, आप कहीं बाहर जाते हो. व्हेन शी वेंट टू ग्रीस, शी रियलाइज्ड कि इसका अदर साइड लाइफ में क्या है. लाइक दिस इज ब्यूटीफुल विद गुड पीपल. सो समटाइम्स वो चेंज कर देता है आपको. दैट गिव्स यू द मोटिवेशन कि आप जाके एक बड़ा डिसीजन लो. एंड दैट वाज अमेजिंग, लाइक अमेजिंग. ऐसी काफी स्टोरीज होंगे आपके पास. yes, इस तरह see, as I already said कि
इट्स नॉट अबाउट कि उसने अपनी लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लिया, बट मैं एज अ कम्युनिटी लीडर भी मैं बहुत इवॉल्व हुई हूँ एज अ पर्सन. मुझे लगता है जब आप किसी के लिए काम कर रहे हो किसी और मोटिव से, यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर ओन सेल्फ बट यू आर थिंकिंग इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. बेसिकली आप जब कभी बाहर जाते हो, आप देखते हो अदर साइड आता है इसका, तो यू फील लाइक कि हाँ यार, मतलब व्हाई एम आई लाइक हैविंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स व्हेन आई कैन हैव दीस थिंग्स, एंड आई कैन गो एंड डू लाइक आई कैन लिव माय लाइफ in a good way. Like that really changes you, right? Yes. This changes you as a person, and I feel यहाँ पर ना सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है. एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट होना घर पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दैट एनवायरनमेंट एट होम, if you want to do something, I always say to my mothers, to my friends, that if you want to do something, first you have to make out that whether you want to do it or not. Don't do it because other person is doing it. Sometimes you know what happens, मैं कई बार मैं किसी से मिलती हूँ तो वो मुझे बोलती है, हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को, तो बोलती है आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ. कई लोग ऐसे बोलते हैं कि व्हाट डू यू डू, आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ. आई ऑलवेज से बीइंग अ होम मेकर इज biggest job which you are doing. Definitely. You are giving your 100% to your home, to your family, to your kids. और इसके लिए actually problem हमारी society के साथ है. You don't get regards to this work. Sometimes even your spouse doesn't value this. Sometimes your family, sometimes your friends. So you know ये चीज़ आपको अपने अंदर से पहले तो निकालनी पड़ेगी. You are not just a housewife. You are doing extremely good for your family, and that's a very big thing which you are doing it. So I always tell them that even if you want to do something, कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे कुछ और करना है, बिकॉज समटाइम्स दे आस्क यार मुझे कुछ टीचिंग की जॉब दिलवा दो यार कोमल, मुझे कुछ भी करना है, बस मुझे घर से निकलना है, आई वांट टू डू समथिंग. सो आई ऑलवेज से देम कि इफ यू आर एंजॉयिंग दैट लाइफ, don't do it because of that FOMO thing. Everyone is doing, so you have to do it. It's just not like that. If you're enjoying your life, just do it like that. It's all fine. Even if you are working, if we are not working, it's all fine. You don't have to feel bad because people are doing things and आपको ऐसा लग रहा है कि आप you're just a housewife. फिर आप कुछ भी करोगे और बीच में आप उसको छोड़ दोगे. It's not gonna work in that way. And secondly, if you really want to do something in life, you want to achieve something in life, first you have to write it down. Right? I always say keep a diary with you. Because when आजकल ये इंटरनेट के टाइम में दुनिया में हो गया कि हम लोग ना लिखना भूल गए. ट्वीट yes. एंड ट्वीट का वो इफेक्ट नहीं होता जो आपका लिखने का होता है. व्हेन यू राइट इट डाउन ना, आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो. नहीं, ट्वीट में भी बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है. So but tweet is a thing, but ट्वीट से कंट्रोवर्सीज ही ज्यादा होती है. You don't get anything out of it actually. So but what you are saying, it makes sense because I think ऐसा कभी आपके ग्रुप पे किसी ने आगे अपना से गोल लिख दिया है क्या, लाइक ट्विटर और समथिंग? गोल लिख दिया मतलब? ये मैं करना Has anyone treated the group like Twitter kind of? Yes. It's like good morning और हाँ, गुड मॉर्निंग हम लोगों ने फिर बंद किया था कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं चलेगा. व्हाट्सएप में तो होते थे गुड मॉर्निंग, फिर एक अच्छा कोट, फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन. सो मैनी. यस. फिर उस दिन की उनकी फ्रस्ट्रेशन वो मैसेज के थ्रू डाल रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं किसके लिए डाला है. shots taken. But that's really like what you said earlier कि when you write it down, you're putting out this message to the universe, and sometimes it gets back. If you really want it, if you really want it, you give your 100%, you will get it. Then and talk to your husband, sit with your husband, talk to him, tell him I want to do this. हमेशा ना लड़ना is not a solution. Every time you have to fight with your spouse or your family that I want to do this. First you have to get 100% sure that you want to do it. When you are sure, sit with your family, tell them I want to do this. मुझे दिन का 2 घंटा चाहिए और मुझे ये चीज करनी, मुझे 2 घंटा अलाउ करो, साल भर के लिए टाइम दो. आप बात करोगे, you can always come up with some solution, and this is how things work, and this is how I think अगर इस तरह से काम करेंगे तो you will definitely get success. Yeah, that's really nice. Yeah. So on this note, I guess we'll end. Thank you so much, Komal ji. Like I think हमें काफी कुछ आज पता चला है. And anybody who's watching in Indore or maybe out of Indore, please, you have to follow Nemo. Like and tell your mothers about it. Yeah, exactly. Like come on, let's do this. और Greece का अगर किसी का मन है तो you know. Any country, anywhere. Yes, so you can find Komal's page on Facebook. It's called Inmo. And thank you for watching. Keep liking, sharing, and subscribing. Thanks. Thank you. Thank you so much.